इससे पहले मैं किसी को बुलाऊं, मैं फिर अपना कार्ड खेल रहा हूँ। मेरे को एक याद आ गई, मेरी जो सबसे पहली कविता थी मेरी, जो मैंने आई हैव नो क्लू व्हाई आई गॉट टू राइट दैट. आई वाज probably 18 and a half or so. I just come back. I was studying in Russia at that time, and I came back and I have no clue why I wrote this, but मैं जब भी पढ़ता हूँ और मुझे लगता है बहुत ही अजीब सी चीज़ लिखती मैंने, पता नहीं कैसे. इसका टाइटल है माई शैटर्ड लाइफ, अ स्क्रीच. So please remember and that I was still 18 and a half and everything in life was I was looking forward to it. And so it goes like this. And I had typed it out on a normal typewriter in my dad's office. I don't think he was. From the embers I had risen to light the whole world. From the embers I had risen to light the whole world, and to the burning fire they led me to light their own dark cold world. With the love I had risen to give out nothing but its warmth, with the kicks in the gut was burned to give them the warmth. Oh, but why did it happen so? Oh, but why did it happen so? After all, this wasn't the dream world I saw. Then maybe this is just the way it is. Dreams are like the softer edges of the saw. There are moments of happiness, of laughter and jubilations, of victories, of smiles and of celebrations. With time they overshadowed by those eras of tensions, by those ages of depressions and those decades of hurt emotions. Like a midsummer rain, you were there in my life. With nothing was I rewarded but pain. Like a midsummer rain, you were there in my life. With nothing was I rewarded but pain, with the vanishing mirage of your love in my life. Don't worry, no blames. Don't worry, no blames. Blunder was mine, it is I who guilty claims. But loneliness to me and joys to you. Oh God, why for me you had missed such a brew? To drink wasn't easy, to survive was even tougher. But still I went on, to be cut, chopped and beaten at the butcher. Oh, people me at last to see, stand broken and battered. Oh, people me at last to see, stand broken and battered, aspirations crushed and dreams shattered. From the embers I had risen and look at last, burnt alive is how to their life to. I have no clue, कोई heartbreak नहीं हुआ था, कोई ऐसा नहीं था. I'm blessed that I married the first woman I love, and so I've been lucky and I have no reason why this happened. So at times, maybe there are residual experiences I feel from relationships of others that are there, that you kind of absorb from that and then you find a voice for them to transmit through yourself. So, चलिए बहुत बढ़िया और आगे बढ़ते हैं. होनीश आप, क्या आप हमारे पास आना चाहेंगे? आप आइए प्लीज. मेरा नाम हनीश है. It's been a while since I recited. हेलो. I think बिना उसके भी ठीक है, right? हाँ. तो एक कविता है, इसका नाम है चीजें गिनने वाली लड़की. एक लड़की थी जिंदगी में मेरी, वो खाली समय में गिनना शुरू कर देती थी. एक लड़की थी जिंदगी में मेरी, वो खाली समय में गिनना शुरू कर देती थी. एक फ्लॉप मूवी के शो में और कितने लोग हैं, हम दोनों को मिलाकर, हम दोनों को घटाकर वो गिनती थी. वो एक सड़क जिस पे हर शाम हम दोनों सैर करते हैं, उस पर कितने लैंप पोस्ट हैं, कितने जले कितने बुझे, वो गिनती थी. वो एक रेड लाइट जिस पर रात भर हमारा रुकना होता, उस पर कितने भिखारी हैं, कितने लूले कितने लंगड़े, वो गिनती थी. उसकी इस नादासी आदत पर कई बार मुझे बहुत गुस्सा आता. उसकी इस नादासी आदत पर कई बार मुझे बहुत गुस्सा आता. मेरे बहुत से अहम सवालों का जवाब बस एक नंबर होता. मैं उससे पूछता कि तुम्हें नहीं लगता मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए. मैं उससे पूछता कि तुम्हें नहीं लगता मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, और वो कहती 12 कुत्ते 8 काले 3 सफेद. मैं उससे पूछता कि तुम्हें नहीं लगता मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए, और वो कहती 12 कुत्ते 8 काले 3 सफेद एक बुरा. अब हम दोनों साथ नहीं. चीजें गिनने वाली लड़की क्या करती है पता नहीं, वो गिनती भी है या नहीं पता नहीं, पर मुझको यह पता है कि मैं गिनता हूँ कि हमें पिछले 4 साल 3 महीने 18 दिन हो चुके.
एक और ना जैसे आई थिंक आई हैव टाइम सो आई कैन टेल। हाँ टाइम तो मतलब the backstory of this poem is something like this. I was working in a MNC और मेरा exact 8 से 5 का टाइम होता था, और उस टाइम पे जो मेरी गर्लफ्रेंड थी she used to work in a startup, तो वो कभी 6 फ्री हो रही है कभी 6:30, तो मैं उसके ऑफिस के बाहर पहुंच जाता था 5:15 के आसपास, और मैं दिल्ली में ही रहता, तो मेरे घर वाले बहुत ऐसे होते थे कि जब डिनर हमारे साथ ही करना है, तो आई जस्ट हैड दोस 3 आवर्स का विंडो कि मेरे को 8 बजे घर निकल जाना है, और बट शी यूज्ड टू कम लेट यूजुअली 6:30 ऐसे, तो मैंने बोला लाइक द टाइम यू आर वेटिंग फॉर समवन बिलोंग टू दैट पर्सन, तो वो तुमसे कंप्लेन नहीं कर सकता, तो मैंने ऐसे लिखा था कि वक्त मेरे इंतजार का था तो तुम्हारा ही, वक्त मेरे इंतजार का था तो तुम्हारा ही, आई हो जो तुम देर से नुकसान तुम्हारा ही, वक्त मेरे इंतजार का था तो तुम्हारा ही, आई हो जो तुम देर से नुकसान तुम्हारा ही, और खुद को था मैं मुफ्त का तुमने कमाया था मुझको, खुद को था मैं मुफ्त का तुमने कमाया था मुझको, खो गया हूँ अब जो मैं नुकसान तुम्हारा ही, और हर बात मानता हूँ तुम्हारी बिल दे रहा था मैं, हर बात मानता हूँ तुम्हारी बिल दे रहा था मैं, तुमने कहा कि बांट ले नुकसान तुम्हारा ही, और जितना खुदरा जाऊंगा मैं दर्द उतना गाऊंगा मैं, जितना खुदरा जाऊंगा मैं दर्द उतना गाऊंगा मैं, नाखून जो तुमने बढ़ा लिए नुकसान तुम्हारा ही। और आई थिंक जैसे आई एम एन इंजीनियर, तो मेरे को ऐसा लगता है जितना भी मतलब मैं आई स्टार्टेड रीडिंग राइटिंग पोस्ट माई 12th, जब मैं कॉलेज में चला गया, उससे पहले आई वाज अ वेरी टिपिकल वैसे बोलते हैं PCM गाय, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो बट अभी स्टिल आई फील वेरी एनालिटिकल अबाउट थिंग्स, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एवरीथिंग यू कैन टॉक इन परसेंटेजेस एंड यू कैन बी एनालिटिकल, बट इमोशंस में देयर इज नो परसेंटेज। तो एक जैसे कविता है कि प्रेम में प्रतिशत है 0%, प्रेम में प्रतिशत है 0%, कि प्रेम या तो होता है या फिर होता नहीं, और जो कुछ भी है बीच में हो सकता है कुछ भी हो सिवाय प्रेम के, कि प्रेम में प्रतिशत है 0%, कि प्रेम या तो होता है या फिर होता नहीं, और जो कुछ भी है बीच में हो सकता है कुछ भी हो सिवाय प्रेम के। वाक्य वाक्य मैं तुमसे 100% प्रेम करता हूँ, मैं 100% से बेहतर है इस्तेमाल करना अत्यधिक, अनंत या फिर आज, मैं तुमसे आज प्रेम करता हूँ। से याद नहीं करके सुना था। मैं तो बहुत जेलस होता हूँ लोगों से जिनको अपनी कविता याद रहती है। हमें तो मुझे मेरी टेस्ट मेमोरी है, तो मैं तो निकाला और फिर मैं खुद पढ़ रहा होता हूँ, खुद एंजॉय कर रहा था, अच्छा ये लिखा हुआ है। तो ये इस पोएम की मैंने लिखी है, मेरे को वही लग रहा था कि मेरे को अब मेरी वाली कुछ याद आ जाए अब मैं सही सुना पाऊँ। तो मैंने लिखी थी, I was 22 years old, मैंने ना like I had just completed my like last sem, and then you wait for the joining letter of the firm जो तुम join करने वाले हो, तो I had those, मतलब मुझे से लगता है वो 12th के बाद एकदम से तुम इंजीनियरिंग की तैयारी में लग जाते हो, फिर इंजीनियरिंग चलती है तो तुम्हारे पास खाली टाइम नहीं होता, बट I had those 2-3 weeks, मैं I was just waiting for that joining letter in my email, तो and then that thought transcended कि technically we are always waiting, if you think about it, तो मुझे से लगता है you are waiting for next thing to happen ऐसे करके। तो ये कविता है कि इंतजार कौन नहीं करता, इंतजार ना जाने लोग कितना करते हैं, इंतजार कौन नहीं करता, इंतजार ना जाने लोग कितना करते हैं, कोई 2 मिनट बाद वाली मेट्रो का इंतजार भी बहुत बेसब्री से करता है, जल्दी होगी उसको शायद मिलना होगा किसी से, और कोई यूं ही घंटों बैठा रहता है प्लेटफॉर्म पर कान में ईयरफोन लगाए जैसे उसको किसी का इंतजार है। इंतजार कौन नहीं करता, इंतजार न जाने लोग कितना करते हैं, कोई कुकर की तीसरी सीटी का इंतजार कर रहा है बहुत देर से, कोई कुकर की तीसरी सीटी का इंतजार कर रहा है बहुत देर से, हो सकता है वो तीसरी को दूसरी समझ बैठा हो, और कहीं कोई दूसरी का इंतजार कर रहा है कि पहली वाली अब अच्छी नहीं लगती। इंतजार कौन नहीं करता, इंतजार न जाने लोग कितना करते हैं। एक घर है उसमें एक बाप है, उसकी 3 बेटियां हैं, वो एक बेटे का इंतजार कर रहा है। एक घर है इसमें एक बाप है, उसकी 3 बेटियां हैं, वो एक बेटे का इंतजार कर रहा है। और कहीं एक और घर है जिसमें एक बाप है, वो अपनी बेटी के ऑफिस से आने का इंतजार कर रहा है। माहौल ठीक नहीं है आज। इंतजार कौन नहीं करता, इंतजार न जाने लोग कितना करते हैं। एक लड़की है कुछ 21-22 साल की, वो कुछ 5-6 महीने से अपनी वर्जिनिटी लूज करने का इंतजार कर रही है, क्योंकि वो करना चाहती है जो वो सुनती है अपने दोस्तों से, देखती है रोज फिल्मों पर, यूट्यूब पर, xyz#.com। और कहीं एक और लड़की है कुछ 21-22 साल की, वो कुछ 5-6 सालों से कोठे से निकलने का इंतजार कर रही है,
क्योंकि वो करना चाहती है जो वो सुनती है आम लोगों से, देखती है फिल्मों में, एकता कपूर के सीरियल्स में, पढ़ती है गृह शोभा। इंतज़ार कौन नहीं करता, इंतज़ार ना जाने लोग कितना करते। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मेरी ज़िंदगी और बेहतर होगी। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मेरी ज़िंदगी और बेहतर होगी। पर ये जो बेहतर से पहले और है, इसकी फरमाइशें खत्म नहीं होती। इंतज़ार कौन नहीं करता, इंतज़ार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत थैंक यू। हाँ, और जैसे मतलब आई वर्क इन अ वेरी टिपिकल जैसे जॉब जो भी है, बट मेरे को ऑफिस के बाद जैसे ऑफिस की बात करना नहीं पसंद, वैसा कहता है कि दफ्तर की बात नहीं करनी थी, दफ्तर की बातें दफ्तर के बात करनी थी, दिल की बात। पूरे दिन देने का करता रहा मन गाली, जहाँ देने दो मुझको अब गाली वहाँ। सुनो मुझको कहते हुए एक बेतुका सा चुटकुला, और चुटकुले पर नहीं मुझ पर कहने दो मुझे कि सारी दुनिया एक नंबर की चूतिया है, पार्डन माय लैंग्वेज। कहने दो मुझे कि सारी दुनिया एक नंबर की चूतिया है, धर्म से नुकसान ज़्यादा और धर्म के नुकसान ज़्यादा है फायदे से। गौतम बुद्ध की क्या फटी होगी जब उन्होंने कहा होगा दुनिया की सबसे अच्छी बात कि जीवन एक दुख है। दफ्तर में है आदमी और आदमी के बीच छोटी छोटी दीवारें। दफ्तर के बाद मुझे नहीं देखनी दीवारें, देखना है आकाश, बाजार का रश, एक बार का दरवाज़ा जिसको जोर से धकेल कर हम अंदर घुसे। दफ्तर में हर डेस्क पर है चाय कॉफ़ी के कप, जिनकी चुस्कियाँ मायने रखती हैं। लोग काम कर सके जब कर, उबासी से चोर की तरह बच सके, कितना दुखद है। दफ्तर के बाद हो हमारी टेबल पर शॉर्ट्स के ग्लास या बियर का मग, जो हमें उतना ही नंगा करे जितनी ढकती है हमें ऑफिस की चाय। बहुत मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा इसको ना रुक रुक के पढ़ना चाहिए। हाँ, मैं बहुत तेज पढ़ हाँ, बहुत तेज पढ़ गए, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। क्योंकि जब तुम चीजें कनेक्ट करते हो ना, और पहली लाइन दूसरी लाइन का एक जो पैराडॉक्सिकल जो कनेक्शन है, चीजों को जोड़ते हो उनमें बहुत ज़्यादा मतलब होता है। मेटाफर्स है। जितना तुम रुकोगे उतना ज़्यादा ऑडियंस को कंज्यूम। ये मुझे 6th क्लास की याद दिला रहा है। मैंने हिंदी डेक्लेमेशन किया था और मेरी मैम कहती थी कि हनीश कोई रेल नहीं छूट रही है, तो आप आराम से पढ़ो। आज भी आप कोई बात नहीं, इट्स ओके। और जैसे मैं बाकियों में उतना नहीं फील हुआ जितना इसमें फील हुआ, क्योंकि इसमें जो है बहुत कुछ सोचने को था। अच्छा, शुक्रिया। आई थिंक ये भी मुझे लगता है बड़ा क्लीशे सी चीज़ है, बट सबको ही नेचर पसंद होता है। लाइक आई थिंक दैट्स अ वेरी, और बट सिटी में रह के इट बिकम्स एन एक्टिविटी टू डू। लाइक मैं 5 दिन मंडे टू फ्राइडे में सुबह 1 घंटा लगा के गुड़गांव जाता हूँ, वापस आता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है वो 5 दिन तो मैं शायद पेड़ ही नहीं देखता, वैसा वाला सीन हो जाता है। और फिर वीकेंड्स पे आई ट्राई टू गो टू आइदर लोधी गार्डन और सम पार्क नियर बाय। और मेरे को ना उड़ते हुए पंछी देखना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये वो है कि जिसमें मुझे पैसे खर्च नहीं हो रहे, मुझे उतनी ही की कार्य जितनी जैसे पैसे खर्चने से आती है आपको यूजुअली। तो ये उस पर एक कविता है। मैं इस धरती पे चल सकता हूँ तब तक, आकाश में पंछी उड़ सकते हैं जब तक। मैं इस धरती पर चल सकता हूँ तब तक, आकाश में उड़ सकते हैं पंछी जब तक। किसी कबूतर की या कौवे की एक छोटी सी उड़ान मुझे देती है मुस्कान। मैं जब बहुत उदास दिखूं तुम्हें, तुम एक चिड़िया की नकल करना। मैं जब बहुत उदास दिखूं तुम्हें, तुम एक चिड़िया की नकल करना। हाथों को पंखों की तरह हिलाते हुए, फिर एक खुशी का दाना ढूंढ कर लाना और खिलाना मुझे अपने होठों से। और फिर एक खुशी का दाना ढूंढ कर लाना और खिलाना मुझे अपने होठों से। तुम्हारे बोसे के बाद पाँव मेरे वैसे भी ज़मीन पर नहीं रहते। मैं चाहता हूँ इंसान का चलना भी कामना दे पंछी को उड़ने की। उस दिन जिस दिन उसका मन बहुत उदास हो, प्रेम और प्रेरणा हमेशा रहे दो तरफ। एक ये है कि उसकी आंखें बहुत बड़ी थी, आम लोगों से ज़्यादा बड़ी। उसकी आंखें बहुत बड़ी थी, आम लोगों से ज़्यादा बड़ी। मैं मजाक में उससे कहा करता था, तुम एक नज़र में मुझसे ज़्यादा दुनिया देख लेती हो, पर यह बात सच भी थी। मैं उससे मजाक में कहा करता था, तुम एक नज़र में मुझसे ज़्यादा दुनिया देख लेती हो, पर यह बात सच भी थी। देखते हुए वर्तमान में मुझे अतीत भी देख लेती थी वो। देखते हुए वर्तमान में मुझे अतीत भी देख लेती थी वो। क्योंकि उसकी आंखें बड़ी थी, मुझे ऐसा लगता था उसके आंसू भी बड़े होंगे। क्योंकि उसकी आंखें बड़ी थी, मुझे ऐसा लगता था उसके आंसू भी बड़े होंगे।
उसको रुलाने का मेरा अपराध भी बड़ा होगा। कभी कभी मैं सोचता था उसकी जो मुझसे आंखें बड़ी हैं, बंद कर लेने पर उन्हें क्या उसका अंधेरा भी मुझसे गहरा होगा। बहुत तो तुम कैसे लिखते हो? सबसे पूछा मैंने कि वो कैसा लिखते हैं, कैसे मतलब प्रोसेस क्या है? मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैं एक स्टेप बैक जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है स्टार्टेड राइटिंग इन कॉलेज फर्स्ट ईयर, या एक पोएम करना है 11th में कभी लिखी थी। बट मुझे ऐसा लगता है आर्टिस्टिक हमेशा होते हैं, इवन इफ यू डोंट नो आर्ट यू आर ऑलवेज आर्टिस्टिक। तो मैं जैसे बचपन से बहुत खोया हुआ भी रहता था। जैसे मेरे को मेरा ट्यूशन में नाम था ख्यालों में क्योंकि मैं वो टीचर होमवर्क देती थी तो मैं कहीं और देखना चाहता था। बट आई एंडेड अप स्टडीइंग एंड इंजीनियरिंग ऐसे। बट मेरे साथ ये होता है मैं सोचता बहुत रहता हूँ। कभी कभी तो मैं बहुत टायर्ड हो जाता हूँ अपनी ही सोच से, मैं बहुत थक जाता हूँ। और मेरे को लगता है जब मैं इतना सोचता रहता हूँ तो वो पोइट्री मेरे हिसाब से बेसिक तो यही है कि जो आप सोच रहे हो और जो हो रहा है उसमें आप एक कनेक्शन बना रहे हो, बेसिक सा मेटाफर। कि हम सारी कविता ऐसे होती है कि मुझे लगता है ऐसे जैसे होता था वैसे, बस उसका ही सब कुछ है। तो मैं जस्ट इफ आई एम गोइंग इन मेट्रो और मेरे को कुछ याद आ गया तो मैं आई जस्ट ओपन माई नोट्स एंड आई राइट दैट आइडिया। लाइक जैसे वो नोट्स लिखते ऐसे मैं लिख लूंगा पंछी उड़ना, इसको इससे रिलेट करना है, समथिंग लाइक दैट। और फिर वीकेंड पे आई जस्ट, और या जब भी रात को कभी टाइम मिलता है तो आई जस्ट राइट। इस मतलब पिछले 5-6 सालों से तो यही प्रोसेस है। दैट आइडिया आ जाता है तो मैं लिख लेता हूँ कि इसको कनेक्ट करना, फिर मैं लिख लेता हूँ। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो आई डू एनीथिंग मच। मेरे ख्याल से ये कुकर की सीटी की भी तरह है तुम्हारी, प्रेशर को रिलीज कर देती है। तुम सोचते रहते हो उसको निकालना जरूरी मेरे है। को तो ऐसा ये भी लगता है कि वो रिलीज ही नहीं हो रहा है प्रेशर। जैसा कुकर में सीटी बजती रहती है, हाँ, वो एक के बाद एक आती रहेगी, वो फिर उबाल आएगा, फिर सीटी बजेगी। जैसे विनोद कुमार शुक्ल करके एक हिंदी के लेखक है, हाँ वो मुझे बहुत पसंद है। तो उन्होंने भी कुछ ऐसा बोला है कि कोई कविता कंप्लीट नहीं है, हर कविता इनकम्प्लीट है, और एवरी नेक्स्ट पोएम इज एन अटेम्प्ट टू कंप्लीट व्हाट यू वांटेड टू से। तो उन्होंने ऐसी बहुत बढ़िया बात बोली है। मुझे लगता है कि अगर आप एक पोएट की पोएम्स पढ़ रहे हैं तो आप उसकी ऑटोबायोग्राफी ही पढ़ रहे हैं। वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, बट आप किसी में आप देख रहे हैं वो अपने बचपन की बात कर रहे हैं, किसी में आप देख रहे हो अपनी जवानी की बात कर रहे हैं, और वो 60 साल का पोएट है तो आप देख रहे हो अपने बुढ़ापे की भी बात कर रहा होगा उसमें। तो एंड फिर आई थिंक आफ्टर एवरी पोएम वी थिंक दैट वी हैव सेड समथिंग, बट देयर इज ऑलवेज समथिंग लेफ्ट अनसेड। तो वो ये सारी आर्ट्स है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ पोएट्री नहीं, पेंटिंग्स में भी हम बिलीव करेंगे कि मतलब दे आर नेवर कंप्लीट। हम रुक जाते हैं, और फिर हम रोक देते हो कि भाई ये कंप्लीट, अब इससे ज्यादा मैं इस पेंटिंग पे काम नहीं करूँ। फिर मैं पेंटिंग सुबह तो पता चलता वहीं कहीं से शुरू हो रही है। मुझे एकदम मोमेंटली ना, जैसे एक हमें ऐसा लगता है कि पोएम ना इतनी लंबी होनी चाहिए, यहाँ पे लाइक वी रीच्ड एन एंड कह लो। मुझे लगता है ये 2 लाइन लॉजिकल हमने इसको फिनिश कर, और जब थोड़ा सा चलता रहता है ना, ये हाई आ गया, इसको यहीं छोड़ देते हैं। और मैं जब आई रीड माय ओल्ड, मैं जैसे कंपाइल कर रहा हूँ आजकल, आई एम ट्राइंग की तो मैं पढ़ रहा हूँ कुछ पोएम को देख के लगता है तो बहुत फाड़ है भाई, मैं कुछ हूँ। और जब मैं कुछ पोएम्स पढ़ता हूँ मुझे लगता है कि ये तो मतलब इसको तो जला ही, मतलब ऐसा आई थिंक इट्स वो भी पूरे टाइम चलता रहता है। दैट्स नहीं, ये भी आई थिंक एक जरूरी है अपनी चीज से डिटैच होके ना, फिर उसको फिर से पढ़ना, फिर से देखना, फिर रूबरू होना। हाँ, आई थिंक इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस है। तो प्रोसेस चलता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, मजा आया। हमें भी बहुत मजा आया। थैंक यू।